Having understood re-execution, now we will move ahead towards re-entry. Guys, re-entry provides an opportunity to enter into a trade for given leg in case your SL or the target got hit again and the price is again crossing your original average traded price. Re-entry generally traders use for a stop loss, but in Backenzo you can apply re-entry on target also. Okay, you can apply it on target as well. So both the provisions we have provided, you can use it as per your requirement, as per your choice, right? But my video will be focused on a stop loss because many traders they use re-entry on a stop loss. Okay, now let's understand it in a simple and a better manner. As you can see that it's a short straddle portfolio wherein two legs are there, right? जहाँ पे हमने ATM का CE सेल किया है और ATM का PE सेल किया है, right? Now I'm going to set stop loss in terms of premium. Okay, यहाँ पे प्रीमियम पे सेट कर दिया for both the legs. Then it will ask you SL value. So SL value you can put it in points or percentage. So herein I am setting it as 5 for both the legs. Okay, let's suppose. Okay, now if your SL gets hit, then what, right? Then what action you want Backenzo to take? So herein on a stop loss section, you can give command of re-entry. Okay, re-entry का आप command दे दीजिए Backenzo को. Then it will ask you the count. Do you see this button here? SL portfolio name and the count. Herein you can define how many times re-entry do you want. So suppose यहाँ पे मैंने 2 enter कर दिया. Backenzo supports up to 8 legs. Okay, please note that up to 8 legs. And then just click on the select all run on days and name it whatever name you want to give it as. I am giving it as re-entry 2. Okay, I'll just click on the save portfolio button, right? And my portfolio is saved, right? Now I'll explain you what is re-entry in an efficient manner. Okay, suppose you sold 18,000 ka CE leg, okay, at 100 rupees. 100 rupees is your average price, okay, and आपने SL 20% पे set किया, which comes out to be 120 rupees, right? Because you had set on SL action, आपने Backenzo में on SL action क्या set किया था? Re-entry set किया था, right? You had given command of re-entry. So in that case, Backenzo will start monitoring 18,000 का C. जो आपका ओरिजिनल स्ट्राइक है ना, वो उसको मॉनिटर करने की कोशिश करेगा अगर आपका SL हिट हो गया है. मान लेते हैं आपका जो प्राइस है वो 121 रुपीज़ चला गया, आपका SL था 120. आपने ये लेग को सेल किया था 100 रुपीज़ में, तो आइडियली इसको नीचे आना चाहिए था, 90 आना चाहिए था, 80 आना चाहिए था, देन ओनली यू कैन कम आउट इन प्रॉफिट्स, राइट? बट लेट्स सपोज आपके ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, अनफेवरेबल डायरेक्शन में इसने मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया और ये 121 तक पहुंच गया. आपने सेल किया था बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भाग गया, प्राइस 121 चला गया. देन इन दैट केस योर स्टॉप लॉस विल गेट हिट, राइट? सो आपका यहाँ पे जो एसएल हिट हुआ है इस लेग का, तो इस केस में बैकेंजो क्या करेगा? इट विल स्क्वायर ऑफ योर ओरिजिनल लेग. यहाँ पे ये ओरिजिनल लेग जो आपका 18,000 का सीई है उसको वो क्या करेगा? स्क्वायर ऑफ कर देगा. बिकॉज आपने एसएल एक्शन री एंट्री दिया हुआ है बैकेंजो को कमांड में, देन बैकेंजो विल स्टार्ट मॉनिटरिंग 18,000 का सी, जो आपका ओरिजिनल स्ट्राइक है उसको वो मॉनिटर करने की कोशिश करेगा फॉर सेम ओरिजिनल एग्जीक्यूटेड प्राइस. आपका ओरिजिनल एग्जीक्यूटेड प्राइस क्या था? 100. तो 100 प्राइस का वो वेट करेगा कि इस 100 प्राइस पे ये फिर से आ जाए. अगर ये फिर से आ जाएगा तो ये फिर से इट विल क्रिएट एंड एग्जीक्यूट अ न्यू लेग इनटू द सेम ओरिजिनल स्ट्राइक, दैट इज योर 18,000 सीई. ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी इन अ बेटर मैनर कि ये कैसे री एंट्री वर्क करता है. डू नॉट कंफ्यूज विद द री एग्जीक्यूट लेग. In case of re-entry, Backenzo will take the entry again in the original strike. Same strike रहेगी when price comes to the original execution price, that is your 100. In this case, it is 100 original execution price, right? Please note
it is very important for you to note that in case of a re-entry, I'll just quickly show it to you by clicking on the edit button. In case of a re-entry, all other settings such as वेट एंड ट्रेड, आपका वेट एंड ट्रेड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट? वेट एंड ट्रेड, देन आइडल लेग्स, दिस इज आइडल लेग, राइट? एंड रेंज ब्रेकआउट एंड रेंज ब्रेकआउट, it will be ignored because it is taking re-entry when reaching the original execution price. Please note that. Okay, now I'll just click on the save portfolio button. I'll enable it, recalibrate it. I'll run it on simulation. Okay, and I'll choose 18th October as my simulation date. I'll click on the strict timing. If it is strict, then simulation will work strictly only from start and the square of time of the selected portfolio. So here in my case, while creating portfolio, I had mentioned 9:20 as my start time and 3:25 as my square of time. So it will run my portfolio strictly between start time and the square of time. Okay, I'll just click here at the strict timing. Click on the play button. Login is successful, right? You can visualize your position here. आप position यहाँ से देख सकते हैं. As you can see, live PNL movement. Now, do you see this plus button? If you click here, you will find only the two legs, right, of the straddle, जो आपको दो legs. But now, see, the third leg has come in front of you. अब ये third leg किधर से आया? From where it got created? See keenly. ये यहाँ पे दो सीई के लेग आ गए, राइट? दैट मीन्स आपका जो सीई का लेग था वो इट गॉट हिट. डू यू सी दिस आईडी? ये वाला री एंट्री का आईडी है. ओके, नाउ जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है? डू यू सी दिस ऑप्शन पोर्टफोलियो? ऑप्शन पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है? जस्ट क्लिक हियर ऑन द प्लस साइन, स्क्रॉल इट डाउन, स्क्रॉल इट डाउन. ओके, नाउ अब यहाँ पे तो आपको थ्री लेग्स दिख रहे थे, ये थर्ड लेग आ गया कि मतलब आपका ये जो सीई का था लेग वो इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया. तो आइडियली आपका यहाँ पे भी तो थर्ड लेग दिखना चाहिए ना, बट व्हाई इज इट नॉट शोइंग, राइट? दिस क्वेश्चन में पॉप अप इन योर माइंड, राइट? कि यहाँ पे ये क्यों नहीं आया? सो आइडियली ये ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज इट हैज नॉट कम इनटू एग्जीक्यूशन येट. ओके, डू यू नो व्हाई इट हैपेंड? तो यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं. डू यू सी दिस एवरेज एंट्री प्राइस? आपको यहाँ पे एवरेज एंट्री प्राइस दिख रहा है ऑफ दिस सीई लेग. 17,450 का जो सीई लेग है वो 106 इज द एवरेज एंट्री प्राइस, राइट? आपका एवरेज एंट्री प्राइस यहाँ पे क्या है? 106, है ना? तो अभी जो आपका LTP चल रहा है, इट हैज नॉट क्रॉस्ड योर एवरेज एंट्री प्राइस येट. मतलब आपका जो LTP चल रहा है वो एवरेज एंट्री प्राइस जो कि 106 है इसके ऊपर चल रहा होगा. दैट्स व्हाई इट डिड नॉट गेट एग्जीक्यूटेड. ठीक है, यहाँ पे आपका जो थर्ड लेग है सीई का री एंट्री वाला वो नहीं आया है. जब मेरा प्राइस दोबारा से एवरेज एंट्री प्राइस पर आएगा, यहाँ पे एवरेज एंट्री प्राइस 106 है, राइट? तो जब मेरा प्राइस दोबारा से एवरेज एंट्री प्राइस पर आएगा ना, देन योर लेग जो सीई का लेग जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो री एंट्री ले लेगा और यहाँ पे आपको थर्ड लेग दिखने को मिल जाएगा. ओके, नाउ आई जस्ट increase the speed of it, okay, in order to showcase you कि ये थर्ड लेग कैसे एग्जीक्यूशन में आता है. Now I'm increasing it to 62x टाइम. यहाँ पे आपको दिख रहा है 62x टाइम पे मैंने इंक्रीज कर दिया है, बट उस हिसाब से क्लॉक यहाँ पे मूवमेंट नहीं दे रही है. यू नो व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज अंडर मल्टी लेग ग्रिड यहाँ पे काफी UI अपडेशंस हो रहे हैं. बट इफ यू गो टू द बैक टेस्ट रिजल्ट, जैसे ही आप बैक टेस्ट रिजल्ट पे जाओगे ना, आपकी ये जो क्लॉक मूवमेंट है ये बहुत फास्टर हो जाएगा. सो सी, इफ जैसे ही मैंने बैक टेस्ट रिजल्ट पे स्विच किया वैसे ही आपकी ये जो क्लॉक है ये बहुत फास्ट मूवमेंट इसने देना स्टार्ट कर दिया, राइट? बिकॉज यहाँ पे कोई भी UI अपडेशंस नहीं हो रहे हैं, राइट? I'll again switch to the backtest result so that मेरी क्लॉक थोड़ी सी और फास्टर मूवमेंट देने लग जाए और
अगर मेरा सीई का लेग एग्जीक्यूट हो जाता है तो आई विल बी एबल टू शोकेस इट टू यू. Yes, yes. So if you go to the multi-leg, drag it down, you will find, wow, two more legs you can visualize here, right? दो और सीई के लेग्स आ गए. ये कहाँ से आ गए एक्चुअल में? ये दो जो सीई के लेग्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब है इसका भी सीई का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये इसने री एंट्री लिया, राइट? इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसने फिर से री एंट्री लिया, राइट? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है. दैट प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ री एंट्री ना, आपका जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा ना वो सेम ही रहेगा. देखो यहाँ पे 17,450 का सीई का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो जो री एंट्री हुई वो अगेन एट द सेम स्ट्राइक प्राइस हुआ, दैट इज 17,450 का सीई, राइट? प्लीज नोट दैट कि आपका री एंट्री में कभी भी स्ट्राइक चेंज नहीं होगा. यहाँ पे उसी पर्टिकुलर ओरिजिनल स्ट्राइक को बैकएंड मॉनिटर करेगा और उसी में आपका जो ओरिजिनल एग्जीक्यूशन प्राइस है उसमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, राइट? नाउ इफ यू सी योर आपका 17,450 का जो ओरिजिनल एवरेज एंट्री प्राइस था वो 106.50 था, और जब ये एग्जीक्यूट हुआ यानी री एंट्री हुआ तब सेम प्राइस पे यानी 106.30 पे ही हुआ, राइट? अब आपको यहाँ पे मेजर कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, राइट? बहुत माइनर सा एक डेसिमल का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है. इट्स बिकॉज मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और उसमें कुछ स्लिपेजेस भी रहते हैं, राइट? अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये थर्ड लेग एग्जीक्यूट हुआ वो 105.80 पे हुआ, राइट? है ना? आप यहाँ पे स्टेटस भी देख पा रहे हैं. स्टेटस में ये इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पे जो एंट्री फिल्ड क्वांटिटी है वो 50 पूरी यहाँ पे एग्जिट फिल्ड हो गई, यानी ये ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट? ये पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है. 17,450 का जो पी है वो लेग प्रॉफिटेबल रनिंग है, राइट? इसलिए यहाँ पे एग्जिट फिल्ड क्वांटिटी जीरो है क्योंकि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसका स्टेटस कंप्लीट नहीं हुआ. ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो दो सीई के जो मैंने री एंट्री करवाए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं. अब आपने नोटिस किया होगा कि ये दो बार ही आया, राइट? दो बार ही इसने एंट्री ली. क्यों दो बार एंट्री ली? आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज मैंने जब क्रिएट पोर्टफोलियो में कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने दो काउंट दिए थे, राइट? I had mentioned two counts of a re entry while making portfolio. That's the reason यहाँ पे सिर्फ दो ही बार उसने re entry किया है, right? Now, so now I hope you must have understood how re entry works, right? Now I'll be explaining you about the re entry settings. So for the re-entry setting, you have to go to the monitoring tab. Where will you find the monitoring tab? As we know that Backenzo is divided into four sections. This is the first section, default portfolio setting. This is the second section, and this is the third section. And final section is the option portfolio name, right? Now you will find monitoring tab under the third section of Backenzo. This is the monitoring tab, right? If you click on the monitoring tab, okay, you will find re-entry setting. Under re-entry setting, you will find many fields such as re-entry monitoring, order type, re-entry trigger on, minute, minute delay in re-entry at original entry price, and no re-entry if moved SL to cost, right? So we'll understand each one of it one by one. So first is re-entry monitoring, right? Here you can set how you want to monitor your leg re-entry price. So there are two ways by which you can monitor re-entry. The first is real time and other is minute close, right? So if you click on the real time, in this re-entry will be monitored in real time. Okay, मतलब जैसे LTP आएगा वैसे वैसे monitor करता जाएगा backend से. Now another is this minute close. Okay, in this case you can set value for minute. आप यहाँ पे minute देखिए, जैसे ही आपने minute पे किया, आपका real time पे आपने click किया था, there was no box here. The moment you clicked on the minute close, this has come in front of you minute. So here you can specify 1 minute,
कैंडल 2 मिनट whatever, आपकी कैंडल्स 1 मिनट की होती हैं, 2 मिनट की होती हैं, 3 मिनट्स, इवन 5 मिनट्स, राइट? तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स पे अगर क्लिक कर दिया, ठीक है, so Backenzo will only monitor the re-entry only in case of minute close. The minute close is almost equivalent to candle close. Okay, for minute close time, Backenzo will always calculate minute close right from the 9:15 a.m. जब आपकी मार्केट ओपन होती है तभी से ये मॉनिटर करना स्टार्ट करेगा. सो सपोज आपकी मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, नाउ नेक्स्ट मॉनिटर करेगा ये 9:20 पे, एंड देन ये नेक्स्ट मॉनिटर करेगा 9:25 पे, देन थर्ड नेक्स्ट मॉनिटर करेगा ये 9:30 पे, राइट? सो ऑन, राइट? तो आपने अगर यहाँ पे 5 मिनट की मतलब ये मिनट फील्ड में अगर 5 मिनट किया है तो फिर वो 5 मिनट के अकॉर्डिंगली इट विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द uh, stock market time, right? That is 9:15, right? So next monitoring will happen at 9:20 and then 9:25, 9:30 and so on. As soon as it changes 5 minutes, it will monitor. Now, if you remember, आपका जो original entry price था वो 106.3 था, right? And your SL was 111. क्यों 111 था? क्योंकि मैंने जब पोर्टफोलियो क्रिएट किया था तो वहां पे मैंने ₹5 का स्टॉप लॉस लगाया था, राइट? सो 106 पे अगर मेरा एंट्री प्राइस है और मैं सेल कर रही हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 111 हो जाएगा, राइट? तो दैट मीन्स योर प्राइस इज समवेयर अराउंड 111. अगर मान लेते हैं आपका 111 के अराउंड कहीं पे है, दैट मीन्स आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया. नाउ देयर इज अ सिस्टम बिहाइंड व्हिच विल मॉनिटर कि 106.3 आया कि नहीं आया. सो इफ इट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग, अगर आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग पे क्लिक किया है, आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, राइट? फ्रॉम हियर अगर आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग किया है तो दैट मीन्स वो हर टिक को वो चेक करेगा, या फिर वो दूसरा ऑप्शन क्या है, मिनट क्लोज, राइट? तो इसका मतलब है कि वो हर मिनट क्लोज पर चेक करेगा, यानी हर टिक पे नहीं चलेगा, फिर वो मिनट क्लोज पे, हर मिनट कैंडल पे क्लोज पे वो चेक करेगा, मॉनिटरिंग करेगा. सो दिस मॉनिटरिंग कैन बी चोजन based on the individual need. Some trader may want that re-entry should not happen on immediate basis. किसी को re-entry एकदम से नहीं चाहिए होती है. मिनट कैंडल तो विक्स से आप बच सकते हो, अगर आप मिनट क्लोज को चूज करते हो ना ये री-एंट्री मॉनिटरिंग, तो आप कई बारी क्या होता है कि विक्स से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट? तो इफ यू चूज मिनट क्लोज एज योर री-एंट्री मॉनिटरिंग, तो आप कई बारी विक्स से बच सकते हो. आप लेट्स सपोज इफ मिनट कैंडल आपकी इट इज क्लोजिंग बिलो द री एंट्री, राइट? क्लोजिंग बिलो द प्राइस, आपका स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज हो रही है, देन री एंट्री शुड हैपन. तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, मिनट क्लोज को चूज कर सकते हैं, मिनट क्लोज के मॉनिटरिंग को चूज कर सकते हैं. सो इन आर केस हमारा जो ओरिजिनल एंट्री प्राइस है वो है 106.3, राइट? इट वॉज आर ओरिजिनल एंट्री प्राइस. तो इफ यू हैव चोजन मिनट क्लोज री एंट्री मॉनिटरिंग, मतलब आपने री एंट्री का मिनट क्लोज अगर चूज किया है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर 5 मिनट की कैंडल के नीचे इफ प्राइस क्लोजेस देन ओनली री एंट्री विल टेक प्लेस. ओके, प्लीज नोट दैट. ओके, नाउ we'll understand next field of it, that is re-entry. This is minute delay in re-entry, that is seconds, right? It has relevance in live execution. यहाँ पे in seconds you have to mention. Suppose my original order got cut. आपका original कोई order था ये वाला cut हो गया, and I want next re-entry order to go in gap of at least 3 seconds, 5 seconds, whatever, right? तो आप यहाँ पे इसको mention कर सकते हैं. Suppose मेरे को यहाँ पे 3 करना है, तो आपको सिर्फ 3 करना है, seconds में ही वो लेगा. So that ये क्यों किया जाता है? So that by that time हमारा margin free हो चुका हो, right? और अगर आपके पास sufficient fund है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, right? मतलब इमीडिएट री एंट्री अगर आपको नहीं चाहिए है तो आप इसको चूज कर सकते हैं और एक डिले रख सकते हैं री एंट्री में. पर इसका जो रेलेवेंस है इट इज मोस्टली इन द लाइव मार्केट. मतलब if you have sufficient funds, then in that case it is not necessary to use this field, minimum delay in re-entry seconds. Okay, now let's understand another field, that is re-entry at original leg average entry price.
अब देखिए हमारे यहाँ पे जो एंट्री प्राइस थी, ओरिजिनल वाली जो एंट्री प्राइस थी, सपोज वो थी 106.3, राइट। अब मान लेते हैं आपकी जो री एंट्री हुई आफ्टर योर एस एल गॉट हिट, वो हुई लेट सपोज 104 पे मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मार्केट ऑर्डर है तो कुछ थोड़े स्लिपेजेस भी हो सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपकी जो ओरिजिनल एंट्री प्राइस था वो था ये 106.3, राइट। और जो री एंट्री हुई वो हुई 104 पे, राइट। यानी ये जो आपकी जो री एंट्री हुई वो 104 पे हुई। नाउ इफ यू टिक दिस ऑप्शन इन बैकेंजो, अगर आप इसको टिक करते हो ना, if you tick this re-entry at original entry price, so if you tick this box na, then in that case original price को ही ये consider करेगा for the next re-entry। मतलब आपका original price 106.3 था, तो ये 104 को नहीं consider करेगा जो आपकी re-entry हुई थी। it will consider your original re-entry price, ठीक है। so that's the reason we select re-entry at original entry price। Now, next field is this one, re-entry trigger on. Okay. Acha, before that, we will understand this order type. So, by default, it will be market, and if not changed, then all re-entry order will be placed at market. But यहाँ पे आपका limit और SL limit है, as per your convenience, you can change it. Okay. Now, let's talk about a critical field, and that is re-entry trigger on. Okay. This is very handy setting for those who want control over re-entry, जिनको re-entry के ऊपर थोड़ा control चाहिए। From here you can set re-entry trigger price, ठीक है। Suppose इसके यहाँ पे if you click on this, this drop down will come in front of you, SL price and the entry price, right। तो चलिए अब समझते हैं, आपका जो ओरिजिनल एंट्री प्राइस था वो दैट वाज 106.3 था, राइट। एसएल आपका कुछ 111 था, जो कि मैंने 5 पॉइंट्स का सेट किया था। एंड अलोंग विद एसएल, सपोज मैंने एसएल ट्रेल भी मेंशन कर दिया, यहाँ पे एसएल ट्रेल का एक ऑप्शन है, राइट। एसएल ट्रेल को भी मैंने लेट सपोज ये देखिए, एसएल ट्रेल को भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, आई मेंशन ट्रेलिंग एज वेल। और मेरा जो एसएल है वो हिट हो गया, मान लेते हैं आपका जो एसएल है वो हिट हो गया, और एसएल हिट होकर वो लेट सपोज 105 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ट्रेलिंग शिफ्ट किया ना, तो और ट्रेलिंग होके मेरा 105 पे आ गया। तो जैसे ही एसएल हिट होगा, री एंट्री की कंडीशन वुड बी सेटिस्फाइड, सो सिस्टम विल चेक फॉर री एंट्री। अब ये सिस्टम चेक करेगा फॉर द री एंट्री that current LTP is if it is lesser than original entry price, so here in that case आपका जो 105 है ना वो lesser है as compared to your original entry price, so condition is satisfied, so it will take re-entry। अब आप खुद सोचो, इन दिस केस अभी तो लेग कट हुआ था और अभी री एंट्री भी हो गई, सो दैट मीन्स आपका ब्रोकरेज विल बी गॉन, राइट। सो टू कंट्रोल दैट वी मस्ट क्लिक ऑन द re-entry trigger on button। Okay, so here are three options, right। कौन से three options है? None, SL price and entry price। So SL price को if you click on, तो re-entry monitoring will only start when price crosses SL price of the leg। आपका SL price क्या था? 111, right। तो SL price को अगर वो cross करेगा, then only re-entry monitoring will start। Okay, now if you click on the entry price, so re-entry monitoring will only start when price crosses the entry price of the leg. Okay. Now comes trigger buffer. This is another field, trigger buffer। Now if you select re-entry trigger on as your SL price, अगर मैं यहाँ पे SL price पे click कर देती हूँ, तो यहाँ पे trigger buffer पे आप क्या set करोगे, right? Then you can set buffer here। So suppose I selected SL price, यहाँ पे मैंने SL price को select किया है। So for this SL leg, जो आपका आप सेल कर रहे हो, अगर लेग को सेल कर रहे हो, तो बफर को यहाँ पे हमेशा ऐड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ऐड होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप बाय लेग की तरफ जा रहे हो, तो जो आपका बफर होगा इट विल बी डिडक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने ट्रिगर बफर 1 में दिया, तो इसका मतलब है
कि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 111 था, तो अब इसमें +1 हो जाएगा यानी 112, क्योंकि ये बफर ऐड हो गया है. इन केस ऑफ सेल लेग बफर विल बी एडेड, इन केस ऑफ बाय लेग बफर विल बी डिडक्टेड. नाउ बिकॉज आई हैव मेंशनड हियर बफर एज 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे बफर 1 सेलेक्ट किया, राइट. तो मेरा जो एसएल है वो 111 है, राइट. और जो ट्रेल एसएल हो गया है वो 105 हो गया है. नाउ इट विल ट्रिगर एट 112. क्यों? क्योंकि मैंने जो बफर सेट किया है वो 112 यानी ऐड हो गया वो लेग, राइट. राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फील्ड. This is no re-entry if moved SL to cost. If this is ticked, it by default it will be ticked. Okay. If this is ticked, then Backensor will not process re-entry action for those legs whose SL was moved. Do you see this option here? Move SL to cost. Due to move SL to cost setting, अगर आपने ये click किया हुआ है, by default this is ticked. You can untick as per your requirement. Okay. अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि जो एक लेग 1 है, ठीक है, एक लेग 1 है और इसका जो है ये एसएल हिट हो गया है, एसएल हिट हो गया है. तो अगर हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं ना, मूव एसएल टू कॉस्ट, तो जो दूसरा लेग है जो प्रॉफिट में है वो आपका दिस इज इन प्रॉफिट, राइट. So जो भी leg profitable है उनके SL move it to the break even. So with this feature you are giving command to Backensor that don't perform re-entry cause their SL is already moved, right? So by default ये टिक ही रहता है. So I hope आपको ये re-entry के settings clear हो गए होंगे. Don't forget to smash like button. Thank you for watching.